ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਯੂਰੀਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕੋ। ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਮੰਡਰਾ ਰਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮੀ ਧੰਦੀ ਲਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਆਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 4-5 ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸੁਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਭ ਕੁਛ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ, ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਣ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨੀ ਥਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਮਾਲਕਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਮਾਲਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਦੱਬਿਆ ਦਬਾਇਆ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਮਾਲਕਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬੁੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼, ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬੁੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਡਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਮਾਲਕਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਆਪੇ ਪੱਟਣ ਡਈਆਂ ਮਾਲਕਾ। ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮੀ ਧੰਦੀ ਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਲਕਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਥਾ ਸੁਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਵਾਂਢਣਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा से, गुरु जी महाराज की कृपा से। आज है 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाई। गुरु जी महाराज की कृपा से आप सभी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएँ। गुरु जी महाराज आप सबको बहुत ब्लेस करें। आपके परिवार में खुशियाँ हैं और गुरु जी महाराज सबको खूब, खूब, खूब आशीर्वाद दें और सबका व्रत सफल बनाएँ। यही मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ और मैं पहले गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी महाराज ने की बहुत कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपने बच्चों पर। गुरु जी महाराज का बहुत आशीर्वाद बरस रहा है। गुरु जी महाराज बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी महाराज मेरे रुके हुए काम भी बना रहे हैं। गुरु जी महाराज आजकल सफाई बहुत करवा रहे हैं घर की। सारा घर जो मेरा बहुत सालों से खराब हो रहा था उसको गुरु जी दोबारा रिन्यू करवा रहे हैं सारा कुछ उसमें। तो गुरु जी महाराज बहुत-बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी महाराज कह रहे थे जैसे कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया तो गुरु जी महाराज इसी घर को आप नया कर दीजिए क्योंकि आप यहाँ विराजमान हैं, तो आप इसी घर को नया कर दीजिए मेरे लिए तो। तो यही आपका आशीर्वाद रहेगा। मैं अभी किचन में बैठ के ही गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी बस मैं आज सुबह उठी थी, थोड़ी जो चाय-वाय पीते हैं हम सुबह पी लेते हैं 4-5 बजे, तो वही पी ली और फिर मैंने कहा चलो अभी हस्बैंड बाहर गए हैं और बेटा सो रहा है, तो मैंने कहा शुक्राना सत्संग शेयर कर लेती हूँ। और गुरु जी महाराज की कृपा से सब ठीक है, गुरु में सुख शांति है। गुरु जी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप हमें सुबह उठाते हैं और गुरु जी के मंत्र जाप से ही हम अपना दिन आरंभ करते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से ही हम अपना रात को सोते वक़्त गुरु जी महाराज के सत्संग सुनते-सुनते और उनका मंत्र जाप करते हुए अपना आराम से हम सो पाते हैं। तो गुरु जी महाराज आपकी बहुत-बहुत शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज। और जो दिन भर आप हमारे लिए ब्लेसिंग भेजते रहते हैं, रोज़ ही सत्संग होते हैं तो ज़्यादातर तो हम भूल ही जाते हैं, पर गुरु जी महाराज जो भी हमें याद दिलाते हैं, हम उसको शेयर कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और कल गुरु जी महाराज मुझे बाज़ार भी ले गए, मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना कर रही थी, गुरु जी महाराज मैं करवा चौथ पे ही हमेशा हर साल एक पायल लेती हूँ और अभी और मेरी पायल टूट भी गई थी, तो मैंने कहा देख लीजिए गुरु जी महाराज आपको अपनी बेटी को दिलवानी है तो दिलवा दीजिए, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत चल रही है, पर फिर भी गुरु जी महाराज ने मुझे पायल दिलवाई। और चुटकी जो हम बिछुए पहनते हैं पैर में, वो भी मुझे गुरु जी महाराज ने बहुत सुंदर दिलवाए, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। अपने गुरु जी महाराज जो इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। और एक सत्संग मेरे बेटे का भी है, कल मेरा बेटा स्कूल से आ रहा था, तो पता नहीं उसको 2 लड़के कैसे ऑटो में आ रहे थे और उसको परेशान कर रहे थे, पता नहीं उसके सिर पे हाथ मार के गए ऑटो में से, वो पैदल आ रहा था। फिर वो घर पे आया, उसका मूड खराब था, फिर उसने बताया मुझे मम्मी ऐसे-ऐसे बात है, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे लो माहौल ऐसा ही है और ई-रिक्शा वाले ऐसे ही होते हैं कई बारी कि किसी का पता नहीं होता कि रोज़ स्कूल जाना होता है बेटे को, वो 11वीं क्लास में पढ़ता है, गुरुजी महाराज का नाती। तो मैंने कहा बेटा इग्नोर करना चाहिए क्योंकि रोज़ स्कूल जाना है, पता नहीं कैसे बच्चे थे गुरुजी महाराज, पता नहीं कौन बच्चे थे, कैसे बच्चे थे, क्योंकि आजकल के बच्चों को गुस्सा आ जाता है, पता नहीं फिर कहीं रास्ते में लड़ पड़े और पता भी ना चले, फिर दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी महाराज आपने पता नहीं उसका कौन-सा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और बच्चे का मन शांत रखा, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। और बच्चे और गुरुजी महाराज ऐसे ही बच्चे के अंग संग रहना, बच्चे कहीं लड़ाई ना करे, किसी किसी प्रकार का गुस्सा ना करे रास्ते में, क्योंकि बाहर के माहौल का हमें नहीं पता कि किस तरह के लोग होते हैं। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही बच्चों के अंग संग रहना, उनको सद्बुद्धि देना और कभी गुस्सा ना करें। और जो भी दोनों अनाथी आपके बाहर रहते हैं, उन पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना, जो आपने उनको जॉब ब्लेस कर रखी है उसमें उनको बरकत देना गुरुजी महाराज, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना उन पर। और बच्चे त्योहार पर घर पर आए तो उनके अंग से सह रहना, अच्छे से आ जाएँ अगर आना चाहें तो। मैंने कह तो रखा है लेकिन जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है गुरुजी महाराज, तो आप देख लेना क्योंकि बिना त्योहार के तो बच्चे के त्योहार अजीब ही रहता है, सूना ही रहता है। तो गुरुजी महाराज तो आपका बहुत-बहुत शुकराना। और ऐसी अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी महाराज, बस अपना आशीर्वाद बरसाए रखना, हम कुछ नहीं चाहते। और बच्चों के और परिवार के अंग संग सह रहना। और मुझसे कहने-सुनने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। कोई और मुझसे, मेरे परिवार से या मायके पक्ष से, ससुराल पक्ष से किसी भी तरह की कोई गलती हुई और जाने-अनजाने में कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, आपका लख-लख शुक्राना। और बस ऐसे ही गुरुजी महाराज आप सफाई करवाते रहना, मैं सफाई करूँगी घर की दोबारा से सारी, क्योंकि फैला हुआ है सब, तो ऐसे ही सफाई करवाते रहना। गुरुजी महाराज जगह-जगह सफाई करवाते रहते हैं, कपड़े, बर्तन बहुत सी चीज़ें गुरुजी ने निकलवा दी हैं और अभी निकलवा ही रहे हैं, तो गुरुजी महाराज ऐसे ही सफाई करवाते रहना। आपका ऐसे ही
और बटरफ्लाई के रूप में तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी महाराज। कल मैं गई बाज़ार तो जैसे ऑटो चल रहा था, ऑटो के साथ बटरफ्लाई चल रही थी। ऐसे इधर, आगे-आगे बटरफ्लाई चल रही थी। नहीं तो मार्केट में तो कभी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। तो उसके लिए भी शुक्राना मैंने गुरुजी महाराज को शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आप यहाँ पे भी आ गए। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कोई भी कहने सुनने में गलती हो तो उसके लिए क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। एक बारी से फिर से सभी बहनों को करवा चौथ की बधाई और दिवाली की भी, आने वाली दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। अब यहीं पे अपने सत्संग का विराम करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। और सारी संगत को जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, बहुत बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। आप हमारे पिता हैं। आपका आशीर्वाद अपने बेटों पे ऐसे ही बरसता रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल करवा चौथ था तो गुरु जी की इतनी सीम कृपा हुई, इतना अच्छा करवा चौथ गया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु बा। हमने ऐसा करवा चौथ कभी नहीं मनाया संगत जी। आज 20-22 साल हो गए मेरी शादी को, और गुरु जी की कृपा से कल हमने शाम को पाठ पूजा की, खूब एंजॉय किया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी की कृपा है गुरुबा, ये आपकी कृपा है जो आप अपनी बेटियों को इतनी खुशियाँ दे रहे हैं गुरुबा। आपका ही शुक्राना है गुरुबा। तो संगत जी, तो फिर चाँद जब निकल आया, हमने व्रत तोड़ के फिर होटल में भी गए, खाना होटल में भी गए। बल्कि जब से मेरी शादी हुई है, हमने करवा चौथ पे कभी भी खाना बाहर नहीं खाया है। तो ये भी मेरे गुरु जी का शुक्राना है जो उन्होंने ही हमें बाहर खाना खिलाया है। शुक्राना शुक्राना। दूसरी बात तो ये है संगत जी, मेरे गुरु जी की कृपा से मैं यहीं पे लोकल, मेरी शादी हुई है, मेरे मायका यहीं रहता है, और 20-22 साल से मैं अपने मायके वालों के साथ कभी बाहर घूमने नहीं गई। तो ये भी मेरे गुरु जी का ही शुक्राना है। मेरे दोनों भाई भाभियाँ, उनके बच्चे भी, मम्मी भी, सब फैमिली ने हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया, खूब एंजॉय किया। तो शुक्राना गुरु जी, ये आपकी कृपा है गुरुबा। ये हमने कुछ नहीं किया, ये आपने किया है गुरुबा। आप हैं तो सब कुछ है गुरुबा। तो सारा खर्चा भी मेरे दोनों भाइयों ने किया है, हमारा तो 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लगने दिया गुरुबा। ये आपका ही तो शुक्राना है गुरुबा। नहीं तो मेरे भाई भाभियाँ में पहले मुझे फ़ोन कर देती कि तुम हमारे साथ चलो, होटल में चलो, चलो तो सही, तुम कभी गए नहीं। तो मैं मना कर देती थी। तो इस बार मेरे अंकल ने खुद ही डिसाइड किया कि हम चलेंगे, और मेरे गुरुबा की कृपा से दोनों भाई भी खुश हो गए कि हमारी बहन चलो, 20-22 साल से हमारे साथ कभी उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो शुक्राना गुरुबा, ये आपकी कृपा है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है गुरुबा, नहीं तो हम इस लायक भी नहीं थे। जो आपने हमें जोड़ा है तभी सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुबा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरुबा, आप मेरे अंकल की बुद्धि को सही करोगे, नहीं तो पिछले करवा चौथ पे सबने हमारा तमाशा देखा था गुरुबा। इस बार कुछ भी तमाशा नहीं हुआ, कुछ भी। आप साथ रहे गुरुबा, पल पल साथ रहे। ये आपकी ही कृपा है गुरुबा, जो आपने इतने अच्छे दिन दिए हमें गुरुबा। चाहे पैसों की तंगी है, तो गुरु जी ने हमें दिन भी अच्छे दिया हुआ है संगत जी। ये नहीं है कि पैसे की तंगी है तो हमारा त्योहार अधूरा रह जाए, नहीं। मेरे गुरु जी अपनी बेटियों को लिए बहुत कुछ करते हैं संगत जी, बहुत कुछ। आप विश्वास रखो तो सब कुछ है, विश्वास है तो सब कुछ है। हमने भी बहुत ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, पर नहीं, मेरे गुरु बा की इतनी कृपा है कि हम आ रहे भी, अच्छे दिन आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरुबा। गुरुबा, सुबह मेरे अंकल ने 4 बजे ऐसा सपना देखा गुरुबा। आप मेरे अंकल को की बुद्धि को सही रखना, कहीं ऐसा वैसा काम कोई भी ना करे गुरुबा। तो उन्होंने गूगल पे सर्च मारा तो गूगल ने बताया कि ऐसे सपने आते हैं तो
कोई ऐसी वैसी खबर आती है गुरुबा, सबके लिए सुख शांति हो, कोई ऐसी वैसी खबर ना हो गुरुबा। और दूसरी बात कहते हैं जब ऐसे सपने आते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है, गुस्सा इनका आप खत्म कर दो गुरुबा, गुस्सा ही खत्म कर दो, सभी को प्यार से बोले गुरुबा। मेरे अंकल की बुद्धि को आप ही सही करोगे, आप कर भी रहे हो गुरुबा। मैं ये नहीं कह रही मेरे के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ कर रहे हो गुरुबा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी ये सत्संग आप मेरा शेयर कर देना, ये मेरी 20-22 साल की जैसे खुशी पूरी हुई है, 20-22 साल की खुशी गुरु जी ने पूरी की है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज अभी संध्या वेला का शुक्राना मैं अभी कर रही हूँ। और शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, आज जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज सोमवार है, आज आपका दिन है। और आज मैं काम करने गई थी अपने लिए ही। मैं और मम्मी गए थे। एक्चुअली हमारे एक दुकान, मतलब एक रेंट वाला दुकान चाहिए था, तो उसको ढूंढने के लिए गए थे। देखे हैं कहाँ कहाँ 2-3 दुकान देखे, लेकिन पसंद नहीं आ रहा। एक्चुअली हमारे यहाँ गली के अंदर मिल गया है, तो गली के अंदर होने से क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो नहीं आते हैं, तो पसंद नहीं आया। फिर जिनके थ्रू हम देख रहे थे उन्होंने ही फिर हमें गुरुद्वारे के सामने बताया है। देखते हैं, आप पापा आप ही का आशीर्वाद है, आप ही करोगे, आपके आशीर्वाद से ही होगा सब कुछ। और गुरुद्वारे के सामने होंगे तो बहुत अच्छा है, आपकी निगरानी में रहूँगी हर टाइम, और मैं चाहती भी हूँ वो हो जाए, और अच्छी जगह है, ठीक है। बाकी तो जो होगा जो, वो तो पापा आपके हाथ है, आपके ऊपर, बस सब ठीक-ठाक हो जाए। और आज से मैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है, बीच में बंद कर दिया था, तो थोड़ा हेवी भी हो रहा था बॉडी, तो मैंने कहा नहीं आज से शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं होगा, तो आज से शुरू किया है। अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिनों बाद मैं निकली हूँ बाहर। जैसे आपका मैं वो भी आता है कि थोड़ा बाहर निकल, लोगों से मिल-जुल, तो वो चीज़ अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद गई हूँ पार्क में, और हरे-भरे एकदम ग्रीनरी, एकदम बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे प्रकृति से मुझे अटैच होना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मन भी करता है कि कहीं दूर चली जाऊँ पहाड़ के उधर, चुपचाप बैठी रहूँ, चारों तरफ पहाड़ होंगे, एकदम ग्रीनरी होगा, चुप करके बैठी रहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति के साथ खुद को अटैच करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उससे आपको सुकून भी मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन हम जहाँ रहते हैं यहाँ तो पार्क वगैरह है, लेकिन फिर भी भीड़-भाड़ है, शोर-शराबा है। लेकिन मुझे उसी जगह जाना पसंद होता है जहाँ शोर-शराबा नहीं है, जहाँ सुकून मिलता है। आप चीज़ें सोच सकते हो, आपकी जो मन की जो इच्छाएँ हैं वो आप प्रकृति से बोल सकते हो। तो ऐसा माना जाता है कि आप जो मन में है वो आप अगर बोलोगे तो वो विश फुलफिल होता है। और जैसे पेड़ के सामने, हर एक पेड़ के सामने नहीं, जंगल वाला पेड़ नहीं, नॉर्मल ऐसे जैसे पार्क में कोई पेड़ हुआ होगा, उनको हग करना, उनसे बातें करना, तो उससे क्या होता है कि आपके जो मन की जो इच्छाएँ हैं वो ऊपर तक जाती है, यूनिवर्स तक। तो वो आपको फुलफिल होता है और आपको सुकून भी मिलता है, क्योंकि यह धरती से जुड़ी होती हैं पेड़, तो हमें सुकून देती हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, तो ये होना चाहिए। और एक चीज़ मेरे मन में काफ़ी दिनों से 2 दिन पहले ही देखा कि मतलब वृंदावन में जो बहुत एजेड लड़की, मतलब औरत होती हैं, उनको जो छोड़ के चली जाती हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है, मेरे मन में है। तो बस वो जो होना है वो तो आगे गुरुपा ही करेंगे, तय करेंगे। जो सच्ची में बहुत खराब लगता है कि माँ-बाप को कैसे छोड़ के चले जाते हैं, जो जन्म देते हैं, इस धरती में लेके आते हैं। अ, मतलब क्या कहते हैं, जो प्रकाश दिखाते हैं, उनको ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। माँ-बाप एक प्रेशियस स्टोन की तरह होते हैं, जेम्स,
जब तक आपके ऊपर छाता जिसे बोलते हैं, जब तक आपके सर के ऊपर है तब तक आपको ये लगता है कि हाँ है, कोई है जो आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए दुख कर रहा है, आपके हर कुछ दुख में, सुख में, दुख में, सब में आपके साथ है। तो ये कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि उनको भी तो ये सोचना है कि एक दिन वो भी माँ बाप बनेंगे, उनके साथ भी तो ये हो सकता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ये चीज़ आगे जनरेशन को देना है कि ऐसा नहीं करना है, कि बोझ मत समझो, वो भी तुम आए हो, उनके अंश हो, तो उनको भी उतना ही प्रायोरिटी दो जितना वो तुम्हें देते थे एक टाइम पे। तो यही है। बाकी दिवाली आ रही है, सबके घर में बहुत बहुत खुशियाँ हैं, और दिवाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो चारों तरफ लाइट्स होते हैं, दिए जलते हैं, इतना अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और सबके घर में पूजा होती है, हमारे घर में भी होता है, लक्ष्मी पूजा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उस टाइम थोड़ा सब सावधान भी रहें, क्योंकि बहुत जो खराब काम करते हैं उस टाइम करते हैं उसी दिन। तो उस दिन माँ काली की भी पूजा होती है हमारे यहाँ, बहुत बड़े करके पूजा होती है, हमारे घर के सामने ही होते हैं। बहुत काफ़ी जगह होते हैं माँ काली के पूजा, और मुझे माँ काली बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। वो मेरी माँ आदिशक्ति हैं। तो बस बहुत अच्छा जाए सबका, सब मनोकामना पूर्ण हो। और पापा आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, आपकी और माँ की। तो आप आशीर्वाद दीजिए, हम सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हमारे सबके घर में खुशियाँ भर जाए। आप भी बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि आप तो हमारे यहाँ इतने कर्म काटते हो, तो अपना भी ध्यान रखिएगा। आप भी अपना ध्यान रखिए। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए पापा, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी इतनी अच्छे से हमारे शुक्राना शेयर करती हैं, उनको भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आते हैं, रिटन्स में आते हैं और ऑडियो में भी आते हैं, सबको ठीक करके फिर प्रेज़ेंट करना बहुत बड़ा काम है। तो उनको भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे काम वो कर रही हैं, तो उनको ब्लेसिंग दीजिएगा पापा। और इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। अगर मेरे से बोलने में कोई भी भूल चूक हुई हो पापा, माफ़ कर देना। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सुमन आंटी जी, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि सदा आपके परिवार पे और आप पे बनाए रखें। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि इस बार का करवा चौथ का व्रत तो बहुत ही सुंदर गया। गुरुजी ने बहुत अच्छी शॉपिंग कराई। मैं तो एक जोड़ी मतलब चप्पल लेने जाती थी, लेकिन गुरुजी ने 2 जोड़ी चप्पल दिलाए मुझे। और ना शॉपिंग जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई ना, एक्चुअली उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मंडे का दिन था, करवा चौथ से पहले जो मंडे आया था, तो उस दिन बहुत बारिश थी यहाँ पे फरीदाबाद में। लेकिन ये अच्छा था कि हमारा ड्राइवर और गाड़ी उस दिन घर पे ही थे, तो मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो गाड़ी ड्राइवर घर पे थे, वो शाम को उनको लेने जाना था, तो मैं उसके साथ लेके और शॉपिंग करने गई, और एक ही दुकान से मुझे सारा सामान अच्छे रेट पे मिल गया और बहुत बढ़िया कंपनी का सामान मिल गया, और करवा चौथ का व्रत भी बहुत अच्छे से हो गया। हमने खूब मस्ती की, खूब सारी पिक्स ली। मैं अपने पुराने घर यानी अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ पे देवरानियों ने सबने मिलके हमने पूजा घर में ही की। इस बार तो हमने घर में पंडानी को बुला के और पूजा की, और बहुत अच्छे से करवा चौथ का व्रत मनाया, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से कहती है, गुरुजी मेरा सूट तो ना बहुत लाइट कलर का, पता नहीं मैं कैसी लगूंगी सबके सामने, तो मेरी बिटिया की पसंद थी वो, तो लेकिन मैं सबसे सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जी। सब कह रहे थे कि तू ही सबसे सुंदर लग रही है, तो मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी कहीं मैं सबके सामने फीकी ना पड़ जाऊँ, लेकिन गुरुजी ने मेरी लाज रख ली, और मतलब सबने कहा कि तू बहुत सुंदर लग रही है, सबसे सुंदर लग रही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरा व्रत को अच्छे से मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और चाँद भी सही टाइम पे निकल आया था। हम सैनिक कॉलोनी रहते हैं ना इधर फैजाबाद में, तो 8:30 बजे चाँद भी दिख गया, और हमने चाँद को अर्घ दे के फिर खाना भी खा लिया, और हमारा व्रत बहुत अच्छे से गया। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था कि ना तेरे बेटे पे संकट आया हुआ है, तो हुआ भी ऐसे। मेरे बेटे के पेट में ना 2-3 दिन से तकलीफ चल रही थी, कभी जलन होती थी, कभी पेट लूज हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसको 3 दिन लगातार दिया,
तो अब उसके पेट में थोड़ा आराम है। और गुरुजी कह रहे थे कि तेरे परिवार पे जो संकट आए ना, आज सुबह ही मैसेज आया कि तेरे परिवार पे और तेरे जो मतलब बेटे पे पति जो संकट आया वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। हुआ क्या ना कि मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो काम करते करते पता नहीं अचानक कैसे छड़ाक से टूट के गिर गया और उसके सारे मोती इधर उधर बिखर गए। तो फिर जब मैंने बाद में मोबाइल में देखा तो मैसेज आया था कि गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे पति और तेरे बेटे का संकट अपने ऊपर ले लिया है। यानी कि वो ब्रेसलेट टूटना इस बात का संकेत था कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट, हमारे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमारे परिवार का, अपने हमारे संसार का कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो अब मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे ना कहीं और से ब्लेसिंग मिल जाए, क्योंकि मेरा ब्रेसलेट तो टूट गया। मैं तो अभी नई संगत बनी हूँ ना, मुझे भी 1.5 साल हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे कहीं से नई ब्लेसिंग मिल जाए तो मैं धारण कर लूँ। तो अब वो मुझे पता है, अब वो रास्ता भी बना ही देंगे और कहीं ना कहीं से मुझे ब्लेसिंग दिलवा ही देंगे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड के देवता, आपकी जय हो। जय मेरे बाबा की बनाई सारी सृष्टि प्रकृति की जय, हमारे माँ बाप बहन भाई सबकी जय, हमारी अपनी फैमिली की जय, सबको राम राम, सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे गुरु जी के गुरु परिवार का को कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरे साथ 2 सत्संग हुए। गुरु जी ने आज मुझे 2 सत्संग करवाए। आज सुबह सुबह ही मैंने उसमें देखा था कि सत्संग में कि पुत्र आज मैं तेरा कल्याण करूँगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गुरु जी पता नहीं क्या कल्याण करेंगे आज मेरा गुरु जी, तो मुझे नहीं पता था संगत जी। तो कल संडे था ना, तो कल हमने पोलियो पिलाई थी, फरीदाबाद में पोलियो पिलाई जा रही थी छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को। तो कल मेरी ड्यूटी लगी हुई थी पोलियो में, तो कल पूरा दिन हमने पोलियो पिलाई। और आज भी दूसरे दिन भी हमने घर घर जाकर निशान लगाए, डेट डाली सबके घरों पे और हमने पोलियो पिलाई। मैं मन ही मन सोच रही, पता नहीं आज प्रभु ने ये मुझे ये मैसेज में क्यों दिया कि भाई आज मैं तेरा कल्याण करूँगा। मैंने कहा पता नहीं गुरु जी मेरा क्या कल्याण करने वाले हैं। तो संगत जी, मैं और मेरी वो हेल्पर हम दोनों ही चले गए। उसने वो पोलियो का डिब्बा पकड़ा हुआ था और मैंने टैली शीट भर रही थी मैं उस पर निशान लगा और घरों पे मैं डेट डाल रही थी। तो संगत जी, मैं डेट डालती डालती इतनी थक गई मैं। और वो जो दूसरी वाली थी हेल्पर, उसने बस डब्बा ही बाकी पकड़ा हुआ था, मेरे साथ साथ चल रही ना। उसने एक भी घर में डेट डाली और ना उसने टैली शीट पकड़ी, और बस डब्बा उठा के एक घर में घुस जाए तो वो आधे घंटे से पहले ना निकले। मतलब इतनी बातों नहीं कि अकेली लगी रहेगी, अकेली इसे करन दे, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ, पैसा तो मुझे जब भी मिल जाएंगे, बस मैं गैल गैल चल रही हूँ डब्बा पकड़ के। जबकि संगत जी बराबर का काम करना होता है, लेकिन ये लोग बराबर का काम नहीं करती, हरामपना दिखाती हैं ये लोग हेल्पर जितनी भी हैं ये। ऐसी वो दूसरी वाली आंगनवाड़ी की हेल्पर और ऐसी ही है हमारी वाली आंगनवाड़ी की हेल्पर। तो मैं इतनी थक गई संगत जी, अकेली निशान लगाती लगाती अकेली घरों पर डेट डालती डालती बहुत थक गई बुरी तरह से। तो मैंने जब सारे हमें जो दूसरी पार्टी है ना, उनको तो 70-80 घर दे रखे हैं। जो हमारी वाली पार्टी है ना, दूसरे दिन मैं पिलाती हूँ, हमें 100-150 घर दे रखे हैं। और स्कूल सरकार प्राइवेट स्कूल भी हमारे पर ही डाल रखा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो हो भाई, दूसरा साथी जो हमारे साथ है वो तो बराबर का करवाए ना कम से कम। उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाया संगत जी, मुझे थका के डाल दिया उसने। एक एक घर में घुसे और बहन बहन करके उनसे बात करें, कभी कोई किसी घर में चाय पिए, किसी घर में पानी पिए, और मैं अकेली ही सारा काम करती चली गई संगत जी। इसने बिल्कुल भी रहम यूँ नहीं करा कि अकेली डेट डाल रही है, मैं भी एक चौक लेके मैं भी डेट डाल दूँ। और बस वो तो घरों में घुस घुस के बात बनाती रही, मैं 10 घर कर दूँ और वो एक घर में से जब निकल के आए बाहर बात बना के कि अच्छा अपने आप लगी रहेगी अकेली। मैंने अपनी ड्यूटी से फिर भी मुंह नहीं मोड़ा, मैंने ना काम चोरी दिखाई, मैं अकेली करती चली गई। तो संगत जी लास्ट में आकर मैं इतनी थक गई, मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा। जब तो मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा संगत जी, जब हमें एक तो दूर दूर के घर दे रखे हैं, बहुत दूर दूर के, नई नई कॉलोनियाँ बस रही हैं, बहुत दूर दूर के घर दे रखे हैं। तो मैं फिर भी मैंने हिम्मत से हम सारा गाँव का करके सड़क पे बाहर आ गए। हम सड़क पे भी बाहर खेतों में लोगों ने घर बना रखे हैं, तो उन पर भी हमें डेट डालनी पड़ती है। वो गाँव में से निकल निकल के बाहर आ गए। तो संगत जी, मैंने तो इतने सारे घरों में डेट डाल दी, सारे घरों में निशान लगा दिया। और वो जब भी एक घर में घुसे निकल के ना आए, तो फिर उसके बाद मैंने सारे घरों में डेट डाल के मैं चली गई प्राइवेट स्कूल में। मैंने वहाँ बच्चे देखे, मैंने कि तालिका छोटे बच्चे कौन सी क्लास में, जब वो एक मैडम लेके गई मुझे, तो मैंने वहाँ पे 8 बच्चे निकाले जिन्होंने पोलियो ना पी रखी थी। तो मैंने 8 बच्चों के लिए लगाई। मैंने कि यहाँ खड़े हो जा, अभी पोलियो का बॉक्स आ रहा है, दवाई लेके आ रही है वो। और वो ना आई आधा घंटा तक भी। और फिर मैं दोबारा, मुझे ऊपर से दोबारा नीचे उतर के आना पड़ा, और बाहर स्कूल से बाहर निकल के सड़क पर देखना पड़ा कि आ रही है नहीं आ रही है। जब आधे घंटे बाद आ रही है हालती हुई डब्बा लेके, तो जब मैंने खूब धमकाई उसे अच्छी तरह से, मैंने कि तुम्हें ड्यूटी करनी है तो अच्छी तरह से कर लिया करो, नहीं मेरे साथ मत आया करो अगली बार से, मैं तुम्हारे साथ करूँगी नहीं ड्यूटी।
क्योंकि तुम एक घर में घुसती हो, दूसरे में घुसती हो, फिर तीसरे में घुसती हो, किसी घर तुम चाय पी रही हो, किसी घर तुम पानी पी रही हो, ड्यूटी का तुम्हें होश ही नहीं है और मैं अकेली थकी जा रही हूँ और अकेली मैं निशान लगा रही हूँ। तो और तुम्हें कुछ ऐसे भी ना हो रहा। मैंने खूब धमकाई अच्छी तरह से, खिसर खिसर करने लगी। जब मैंने धमकाई नु करी मेरे भी पैर दुख रहे हैं, ये हर हुआ। मैंने कहा तेरे क्या पैर दुख रहे हैं, सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ, तेरे क्या पैर दुख रहे हैं। मैं कोई खाने को देगा, किसी घर में चाय पी रही है, किसी घर में पानी पी रही है, किसी घर में कुछ कर रही है। मैंने खूब धमकाई समझ दिया। तो फिर मैंने कहा जा ऊपर जा, ऊपर जाकर 8-10 बच्चे हैं, उनको दवाई पिला के मैं यहाँ बैठी हुई हूँ नीचे। फिर मैं उसके साथ ऊपर नहीं गई, फिर पिला के आई। मैंने कहा पर्चे लिखवा के ला सर से कि इतने बच्चों को हमने वो पोलियो पिलाई है, और डेट डलवा के ला, साइन करवा के ला। जब गई अंदर घुस के अपने आप लेके आई। फिर मैंने कहा अब ये पीछे के घर भी रह रहे हैं हमें, तो दूसरी पार्टी को तो 70-80 घर ही दे रखे हैं, क्योंकि 2 आंगनबाड़ी है, 2 आशा है इसमें। तो दूसरी वाली पार्टी जो आधा काम वो करती है, आधा काम हम करते हैं, उनको 70-80 घर दे रखे हैं हमारे। जो मैं स्कूल भी थोप रखा है, 135 से 150 के करीब हमारे घर भी हो गए, और फिर भी मेरा काम नहीं निपटा। अंत में मैं थक गई संगत जी। मैं गुरु महाराज से कहने लगी, गुरु महाराज ये तो मुझे थका देगी बहुत बुरी तरह से, ये तो कुछ नहीं कर रही, मेरे को अकेली कोई डेट डालनी पड़ रही है। तो गुरु महाराज ने ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ में कि अपने आप बोली ला मुझे भी दे चौक, मैं भी लगाऊं। मैंने कहा अब क्या हो गया, मैं तो अब अकेली लगा लूंगी, अब क्या हो गया तुम्हें। मेरी भैंस धूप में बंध रही है, और क्या नाम, मुझे भैंस धूप उसमें बांधनी है, और मैं आके बांधूंगी, तो जल्दी जल्दी मेरे को चौक दे दे, मैं जल्दी जल्दी काम करवा लूँ तेरी गल। मैं लगा लूँगी, तो अपनी भैंस बांधिया जा धूप में जा। उसका घर पड़ गया था ना वही रास्ता में। मैंने कहा तू अपनी भैंस बांधिया छाँव में, और जा, मैं अकेली लगा लूँगी। मैं तो जब भी अकेली लगा रही हूँ, जब भी अकेली लगा रही हूँ, मेरे गल गल घूमत, तो अपना काम कर ले जाके जा, और पैसे भी पूरे ले लियो अपने। और संगत जी बोली नहीं ला, मुझे भी दे एक चौक। जब मैंने उसे एक चौक दी, जब उसने सारे घर करवाए मेरी गल जल्दी 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 जल्दी, और जब जाकर मैं निपटी, इतने मैं थक हार गए, मेरे सारे बदन में दर्द, और अब भी दर्द हो रहा है संगत जी। जब मैं आपसे सत्संग शेयर करना, अब भी दर्द हो रहा है। तो एक सत्संग तो ये करवाया गुरुजी ने, मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैं गुरुजी मुझे थका के गिर देंगी, ये मेरे भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं गुरुजी। अपनी बच्ची का फ़ायदा मत उठाने दो, और अपनी बच्ची की मदद करो, हेल्प करो गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी इतनी हेल्प करी संगत जी। मैं थक गई बुरी तरह से। 12-12:30 बजे हम घर आके लगे सारे घरों में डेट वेट डाल के। तो वो वहीं रह गई, उसका घर वहीं है, गाँव बीच गाँव में। मुझे उरे को आना पड़ा, बाहर को है मेरा घर। तो संगत जी मैं यहाँ आ गई। तो आज पता क्या हुआ संगत जी, कई महीनों से ना इसके पापा ने काम करा था किसी पंडित का, पेंट करा था। तो वो ना पैसे नहीं दे रहा था, पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। ये वही आदमी था जिससे हमने 2 लाख रुपए शादी में लिए थे ब्याज पे, 3% पे। तो संगत जी इसका हमने एक एक ब्याज का पैसा हाथ जोड़ जोड़ के दिया। हमने एक एक पैसा, चाहे 2 महीना में दिया, चाहे 3 महीना में, उसने अपना पूरा ब्याज लगा के एक एक पैसा दिया हमने उसका। और जब तो उसके ना, उसने किसी की दुकानें हथिया ली हैं। जैसे ब्याज नहीं भरा गया, किसी को पैसा दे दिया, उस पर नहीं भरा गया, तो उस बेचारे की 2 दुकानें बनी बनाई उसने हथिया ली उस ब्याज खोर ने। तो वो दुकानें हमारे इसके पापा से पेंट करवाई उसने भर दोपहरी में, ये जून के महीना में, मई जून के महीना में भर दोपहरी में दोनों दुकानें पतवाई, और 3-4 दिन का काम बना। तो कुछ पैसे तो उसने दे दिए, 1200 रुपया रोक लिए उसने। तो संगत जी 6 महीना हो गए, 6-7 महीना देने का मन ना करे उसका। अब दूंगा जब दूंगा, अब दूंगा जब दूंगा, उसने सोचे सारे तो मैंने दे दिए, 1200 रुपया ने मार ले। तो हमने मांगनी छोड़ दिए फिर, कि 2 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा। तुमने ब्याज का पैसा मुझे इतनी लेट दिया, तुमने नो दिया, और ब्याज का पैसा लेट दिया, तो तूने तो 1 रुपया भी नहीं छोड़ा ना हम पे, तूने तो सारा वसूला हम पे से। तो फिर एक दिन जब उन्हें पैसे देने से इनकार दिया, मैंने फ़ोन करा। मैंने कि एक बात बताओ, कोई ब्याज का पैसा रुक रहा है क्या हम पे। बोला नहीं। तो मैंने फिर पैसे क्यों नहीं दे रहे तुम, मजदूरी के 1200 रुपये तुमने रोक रखे हैं, ना तो तुम दे रहे हो, ना तुम मना कर रहे हो कि मैं नहीं दे सकता। या तो तुम मना करो, हम मांगना छोड़ दे तुम पैसे, है यार, मना नहीं करो तो फिर पैसा दो हमें, क्लियर हमारे हिसाब किताब करो। तो उसने जब भी नहीं दिए, 6-7 महीना हो गए, 5-6 महीना हो गए, उसने पैसे रोक रखे। एक इंसिडेंट ये करवाया, तो आज उसकी औरत मिल गई मुझे वही बैठी हुई। तो मैंने उससे कहा, मैंने की मामी लगती है हमारी नाते में, क्योंकि हमारी बुढ़िया वो है ना यहाँ की लड़की, तो यहाँ की जो बहू है हमारी मामी लगती है। मैंने उससे कहा, मैंने कि मामी राम राम। बोली राम राम। मैंने कि मामी एक बात बताओ, 6 महीना हो गए तुम्हारे, उन्होंने पैसा रोक रखा है मजदूर आदमी की, अगर मजदूरी ना मिले तो कितना बुरा लगता है। 6 महीने से पैसा रोक रखे, ना तो दे रहे हैं, ना मना कर रहे हैं कि भाई मेरे पर नहीं है पैसे, हम मांगना छोड़ देंगे। भाई एक बार मना तो करो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना करो, क्लियर हिसाब रखो हमारे साथ। हमें बीच में तुमने लटका रखा और 1200 रुपये देने का मन नहीं करा। उसकी औरत चिढ़ गई, लुका रही तुम यहाँ आकर चिल्ला रही है, ये वो कर रही है। मैंने कहा चिल्ला रही है, मेरा बोल ही ऐसा कैड़ा बोल है मेरा है। और मैंने कि भाई तुम्हें जब चिल्लाना इतना बुरा लग रहा था, तुम पहले ही हिसाब किताब कर देना चाहिए था गरीब आदमी का, तुमने क्यों इतने दिन लगाए। फिर अब जब तुम्हें कहना बुरा लग रहा है, मांगना बुरा लग रहा है, मत लगाते इतने दिन, तुम पहले हिसाब किताब कर देते। तो उसकी औरत कह रही उसी से ले लियो, जिस पे तुम्हारा पैसा उसी से ले लियो। मैंने कोई बात ना, तू भी हाथ उठा दे, एक बार कह दे, तू हमें दे रही ना पैसे, हम तो मांगना बंद कर देंगे। फिर कह रही अपने खसम भेजियो,
क्या उसे पैसा देंगे, मैंने वो खसम ना आया, खसम ने 10 बार मांग लिया और 36 बार तेरे घर में आया, उसने एक बार भी ना दिया तेरे खसम ने पैसा। और फिर मैंने भी ऐसे ही बोला फिर संगत जी, तो मैं कह के आगे चली गई, है ना संगत जी। हमने सारे घरों में डेट वेट डाल के और सब काम कर विर के लास्ट उसी का घर बसता है, उस ब्याज खोर का ही, उसके घर पे हमें डेट डालनी पड़ती है, वहीं आकर रुकना पड़ता है हमें। तो संगत जी ऐसा चमत्कार करा गुरुजी ने। मैं कह रही गुरुजी ने मैसेज दिया आज मेरा कि आज मैं तेरा कल्याण करूँगा। तो गुरुजी ने ऐसा ही कल्याण करा। जब हम सारा घूम फिर के आ गए, सबके सारे घर क्लियर करके आ गए ना, हम डेट में डाल के सबको पोलियो पिला के जो बच्चे रह गए थे, तो संगत जी 1200 रुपये लेके बैठी हूँ भाई। मेरे को मैं जो दूसरी वाली थी वो थका के वहीं बैठ गई। मैंने कहा मैं जा रही हूँ भाई, अब तुम देख लेना। मैं घर चल चाय पानी पी गई, मैंने मुझे ना पीनी चाय पानी, मैं घर जा रही हूँ। मैं क्या करूँगी चाय पानी पी के, मैं अपने घर जाकर पी लूँगी बनाकर। तो मैं कह रही पैसे तो ले लो अपने, वो उसी के पास बैठी हुई थी चिपक के, पैसे तो ले लो अपने। तो कौन दे रहा पैसे? मगर ये पैसे लेके बैठी, 1200 रुपये ले ले अपने मजदूरी के। तो संगत जी उसने जाते ही मेरे को पैसे दे दिए, नौकरी ले पकड़ अपने पैसे। और यहाँ तू आकर चिल्लाई, हमें बहुत बुरा लगा। मैंने कहा चिल बात, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तुम्हें चिल्वाने की, तुमने खुद ने आदत डाली मजदूर आदमी, तो भाई चिल्लाएगा ही, अपने पैसे नहीं मिलेंगे तो उसे वो क्या करेगा बताओ। मैंने कहा आज के काम करा तुम्हारा आदमी का, हस्बैंड का। फिर मैंने उसको धन्यवाद बोला, तो चिड़ सी गई वो भी। तो संगत जी चिड़ सी गई वो भी, है ना। तो 1200 रुपये लेके मैं तो अपने घर को आ गई सीधी। तो मेरे गुरुजी ने ऐसा चमत्कार करा, जो पैसे कई महीना से रुके पड़े थे ना संगत जी, वो पैसे आज मेरे गुरु ने दिलवाया, आज मेरा कल्याण कर दिया मेरे गुरु ने। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मेरे को ना जुकाम हो रखा, बोला नहीं जा रहा मेरे से, तो इतना अच्छे है मेरे गुरु जी। एक तो ये चमत्कार करवाया मेरे साथ में, और एक वो वाला चमत्कार करवाया। और हाँ संगत जी एक और चमत्कार करवाया आज मेरे भगवान जी ने। देखो जिसने हमारे गेहूँ वो धान काटे थे ना मशीन से, तो उसके ना पैसे रुके हुए थे, 9,500 रुपये ने हमारी तरफ लगा रखे थे धान काटने के, 3 खेतों के 2700 रुपये घंटा के हिसाब से लगा रखे थे। तो उसके बन गए 9,500 रुपये। तो आज वो मांगना आ गया, 15-20 दिन हो गए वो अनाज कटे हुए, 20-25 दिन हो गए धान कटे हुए मंडी में पहुँचे हुए। तो और पैसा घर में ही हम खा रहे थे, पैसा 6,500 रुपये उसके कुल टोटल बच रहे थे। तो मैंने कहा, तो सोसाइटी के पैसे रखे हुए थे, जैसे हम 12 औरतों का ग्रुप है ना, जैसे 15 तारीख को पैसे जमा करते हैं, तो वो पैसे रखे हुए थे मेरे पास। ये बोले कितने पैसे घर में? मैंने कहा 6,500 रुपया है। सारे उठ के घर में खा गए हम। तो बोले ला दे निकाल के, वो मशीन वाला आया पैसे मांग रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने दिए निकाल के उनको। वो कह रहे 6,500 है, इसमें तो कम से कम 6, 7, 8, 9, इसमें 2,500 रुपया कम है, 3,000 रुपया कम से कम। फिर मैंने 3,000 रुपया औरतों की सोसाइटी में से निकाल के दिया। मैंने कहा ये लो 3,000 रुपया, मुझे कल दे देना जब मैं जमा करूँ पैसे कहीं से भी ला के। तो संगत जी 3,000 रुपये दे दिया। फिर मैं बाबा के कमरे में बैठी थी, क्योंकि बाबा के कमरे में ही पैसे रखे हुए थे हमारे, क्योंकि बाबा के कमरे में रखे रहते हैं ना, तो उनमें ब्लेसिंग मिलती रहती है उन पैसों में, वो फिजूल खर्ची से भी बचे रहते हैं, इसलिए मैं बाबा के कमरे में ही रख देती हूँ पैसे। तो संगत जी तो ये लेके चले गए बाइक स्टार्ट करके, तू पैसे दे के आऊँगा उसे और तू दे दो मुझे। तो मैंने दे दिए, 9,000 दे दिए, 9,500 रुपये। मैंने कि 500 रुपये बचा लिए, सारे ना देख रहे हैं, जैसे पंडित रख रहे हैं ना, बचा ले रहे गरीब की मजदूरी में से भी। मैंने कहा तू भी बचा लिया, हम भी मजदूरी है, 400-500 रुपये उससे कह के देखिए भाई तू इतने ले ले, तू 500 रुपये बचा लियो। मैंने तो ऐसे ही कहा, फिर यूँ करे फिर मैं कह के देखूँगा उसे, 500 रुपये मैं अलग जेब में धर के ले जाऊँगा, और क्या नाम कह के देखूँगा मैं उससे, अगर वो मान जाएगा तो मैं, ना मानेगा तो मैं दे दूँगा उसे। मैंने कहा ठीक है। तो वो चले गए। तो मैंने गुरु पापा से कहा, मैंने गुरु पापा हम भी तो मजदूर हैं, हम पट्टे पे खेत बोते हैं, 9,500 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है, 9,500 रुपये देना है उसे। तो गुरु जी कुछ तो पैसे दिलवा देना हमें वापस, सारे पैसे मत कटवाना गुरु जी देख लेना मजदूर आदमी। मैं गुरु जी से बैठी बैठी यही कह रही थी, गुरु जी के कमरे में बैठी रही फर्श पे ही, और गुरु जी से बात करती रही। मैं गुरु जी मेरी सब बात सुनते हैं, बहुत अच्छे गुरु जी मेरे, एक एक बात सुनते हैं, एक एक बात समझते हैं, मेरी एक एक बात पूरी करते हैं। तो मैं नुगारी गुरु जी से कह रही थी, मैं बस कह के मैं भूल गई, फिर मैं काम में लग गई। थोड़ी देर बाद आए, मैं फिर चली गई अड्डे पे, मैं अपने बाबा के लिए दूध दाद लेने के लिए, मैंने कहा चाय पानी बनाऊंगी बाबा के लिए, और मैगी लेके आई। मैंने मैगी का भोग लगा दूंगी, आज मैं बढ़ती थी ना सोमवार की संगत जी। तो जब मैं वहाँ से आई तो मैं ताला लगा के जाती हूँ संगत जी, क्यों हम 2 ही आदमी हैं, ये भी नहीं था घर में, मैं भी पीछे से कोई घुस जाता घर में, हमारा सफाई कर जाता घर का, तो इसलिए मैंने लगा मैं थोड़ी सी दूर भी जाऊँगी ना, 100 कदम पर भी जाऊँगी, जब भी मैं ताला लगा के जाती हूँ घर में। तो मैं गुरुजी से कह के जाती हूँ, मैंने गुरुजी मैं ताला लगा रही हूँ बाहर से, आप यहीं रहना आराम से। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ पुत्र, वैसे तो ताला ना भी लगाएगी तो भी कोई तेरे घर में घुसेगा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अब आदत ही ऐसी पड़ रही है। तो मैं वहाँ तक गई तो इतने ही आ गई, पैसे दे ला के इन्होंने मेरा हाथ में 700 रुपये पकड़ा दिए, इन्होंने ले 700 रुपये बच के आ गए, और उसने 700 रुपया कम लिया है। उनका अच्छा नुकरा वो अनपढ़ आदमी, उस पर हिसाब नहीं लगा। मैंने कहा अनपढ़ आदमी कोई अनपढ़ नहीं होता,
ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है, 7 नंबर से नवाजा मुझे। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई, 700 रुपये वापस दिलवा दिए मेरे गुरुजी ने। मैंने गुरुजी आप तो बड़ी जल्दी सुनते हो, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय मेरे महाशिव बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं संगत जी सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं फरीदाबाद से सुंदर शांति बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी के चरणों में शत शत नमन सारी संगत जी को। जय गुरु जी। आज का दिन संगत जी बहुत 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 स्ट्रगलिंग था, पर गुरु पिताजी महाराज को पता नहीं क्या उनको परीक्षा लेनी थी, फिर उनको बाद में मुझ पे तरस आ ही गया, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। संगत जी आज क्या इम्पोर्टेंट बात हुई, सारा काम निपटा के आज मेरी तबीयत सुबह मॉर्निंग से ही ऐसी ढीली हो रही थी, आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो आज मैंने सुबह से नहाया धोया भी नहीं था और पूजा पाठ भी नहीं कर पाई थी, बस घर के काम करके खाना वाना बना दिया था, सर में हो रहा था भयंकर दर्द। अब क्या होता है संगत जी, जब काम निपटा के सोचा कि चलो सत्संग सुन लेंगे, अब मेरा फोन गायब संगत जी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, गुरु पापा को याद कर लिया, उनसे रिक्वेस्ट कर ली, ऐसा लगा एकदम से सब कुछ गायब ही हो गया, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। और 1 घंटा हो गया, पूरा घर साफ कर दिया संगत जी, पर मोबाइल ना मिले। फिर 2 घंटा हो गया, आज अहोई माता का बहुत ही शुभ और पावन दिन था। मैं जानती हूँ संगत जी, मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर वाला व्रत नहीं रखा, बट हाँ, मैंने थोड़ी-सी दवाई ली थी और उसके बाद फिर मैंने व्रत रखा। जितनी कोशिश हुई मैंने कर पाई, मेहर करिएगा और क्षमा प्रदान कीजिएगा जो भी गलती हुई हो। और गुरु पिताजी महाराज ने मेरी बेटी को एंजल बना के टचवुड मेरी लाइफ में भेजा। वो स्कूल से आई संगत जी, फिर उसको मेरे पे तरस आ गया, उसने जैसे-जैसे फाइंड आउट करके फिर मेरा फ़ोन निकाल के दे दिया। तो बस अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, आजकल की आप लोग तो समझते ही हो लाइफ कैसी है। और संगत जी हमारे यहाँ टीवी तो है नहीं है, 1 महीने से फूकी पड़ी हुई है और फ़ोन भी नहीं है। घर के काम करके फिर हम बचे हुए टाइम में अपने सत्संग या तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, सुन लेते हैं गुरु पिताजी के सत्संग, जिससे थोड़ा ऐसा लगता है कि कष्ट कम हो रहे हैं और गुरु पापा जी ही हमारा आसरा है संगत जी। और इंसान सफाई कितनी करे, दिवाली की सफाई तो नेवर एंडिंग सफाई है, कभी खत्म ही नहीं होने वाली, मुझे ऐसा लगता है, हम कितनी भी सफाई कर लें। और गुरु पिताजी की मेहर से संगत जी मैंने किचन की कुछ कबर्ड्स क्लीन कर ली थी, जिसमें ऑलरेडी रैट्स और पेस्ट बहुत सारे हो रहे थे। फिर जैसे-जैसे मैंने क्लीन करी, फिर दोबारा वही हाल हो गया, फिर वही दोबारा रिपीट पैटर्न हो रहा है। अब मुझे नहीं पता, गुरु पिताजी आपका घर है, आप जानो, अगर आपको सफाई रखवानी है तो आप रखवाओगे, मैं थक चुकी हूँ, अब हार मान चुकी हूँ। मैं बार-बार उन चीज़ों को क्लीन नहीं कर पाऊँगी बाबा, मेरे बहुत मुझे घिन लगती है, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। आप प्लीज़ अपनी बेटी पे तरस खाओ थोड़ा-सा। गुरु पिताजी महाराज का इतना शुक्राना है संगत जी, कि उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से थोड़ी-सी शक्ति दी। जैसे थोड़ी बहुत शाम की पूजा सेवा कर पाई और ज़्यादा मेरे को प्रोसीडिंग्स नहीं पता, कैसे अहोई माता की पूजा पाठ करते हैं। जितना गूगल के थ्रू मैं कर पाई मैंने किया और जितना हो पाए बाबा अपना एक्सेप्ट करिएगा, जो भी गलती रह जाए अहोई माता से क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिएगा माँ, और सारे अपराधों के लिए क्षमा करिएगा माता रानी और गुरु पिताजी महाराज, और हमारी भक्ति और सेवा स्वीकार कीजिएगा। चीज़ें तो बहुत है संगत जी गुरु पापा के समक्ष रखने को। प्लानिंग भी हम बहुत करते हैं कि सुबह उठ के ऐसे करेंगे वो करेंगे, फिर सब सारी प्लानिंग फेल। मैंने तो ये देखा है, मैंने अगर अपने हस्बैंड अंकल के साथ मिलके कोई भी प्लानिंग कर ली कि हम कल सुबह XYZ ये काम करेंगे या ये थोड़ा बहुत हेल्प करवा देना या अलमारी ऊपर से नीचे शिफ्ट करवा देना या कुछ भी समझी, फिर तो उन्होंने हस्बैंड अंकल को मेरी सुननी ही नहीं है। वो तो और सुबह 9 बजे ही तैयार होके भाग जाएँगे, वो ऐसे हैं। गुरु पापा जी ने कहा कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो तेरे से नफ़रत रखते हैं, जो तेरे से कंपैरिज़न करते हैं, उनसे कुछ उम्मीद मत रखा कर, वो ऐसे ही रहेंगे ज़िंदगी भर। पर मैं तो थक जाती हूँ ना गुरु पिताजी महाराज, आपको पता है मेरे सेंटर ऑफ द चेस्ट में और लेफ्ट साइड हार्ट साइड बहुत पेन होने लग जाता है, ज़्यादा एंग्जायटी हो जाती है, ज़्यादा मैं वर्कलोड ले लेती हूँ अपने ऊपर। आपकी जैसी मर्ज़ी बाबा, वैसे ही होगा।
अगर आप चाहते हो मैं खच्चर की तरह काम करती रहूँ तो ठीक है, आपकी रज़ा मिलता आँखों पर। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं तक, और गुरु पापा से आज्ञा लेते हुए महामंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सात संगत जी आपको जय गुरुजी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी आज का। और ये शुक्राना सत्संग इस बात के लिए है संगत जी कि गुरुपा हमको पता नहीं कितना दिन से बहुत सारा कुछ सपना दिखलाते हैं, जो हमको एकदम याद नहीं रहता है संगत जी। धुंधला-धुंधला कुछ बाद में याद आता है, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आता है। तो संगत जी हो सकता है कि गुरुपा बहुत सारा सत्संग सुनवाते हैं जिसमें कष्ट कटवाते हैं संगत जी, तो इसी के लिए सुनवाते होंगे, सपने में ही कष्ट काटते होंगे संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और हमको याद नहीं रहने देते हैं संगत जी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, क्योंकि हम सब कुछ बता भी देते हैं सबको संगत जी। तो अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सात संगत जी जो सुन रही हैं, और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा, और जो संगत जी नहीं सुन रही हैं उनको भी, और उनके भी पूरे परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को, और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत खुशियाँ, आशीर्वाद, बरकत और स्वास्थ्य, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ का आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा सुमन आंटी को और उनकी फैमिली को। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन, यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत के नाम में सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, और सब संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से आपके स्टेशन तक पहुँचाती हैं और आप उसे स्वीकार करते हैं, तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बनाने के रखने के लिए शुक्राना, सभी संगत को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। कल जो है अहोई अष्टमी थी और मेरा अहोई अष्टमी का फास्ट था, और वो फास्ट गुरुपा ने बहुत अच्छे से कराया। इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। मेरे दोनों बच्चों को और सब संगत के बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और बच्चों दोनों बच्चे और हम सब ने मिलकर साथ में ही जो है वो उपवास जो मैंने खोला और बच्चों के हाथ से जल ग्रहण किया, क्योंकि मैंने निर्जला जो है वो रखते हैं इसको, तो हमारे में निर्जला ही रखते हैं। तो गुरुपा ने कड़वा चौथ और ये जो है अहोई अष्टमी सारे उपवास जो है बहुत अच्छे से कराए। इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। और गुरुपा मेरी जो है मदर इन लॉ है, उन्होंने मम्मा ने मुझे पहली बार बताया था इस तरह से कि इस तरह से इसका फास्ट को रखते हैं, और ये बहुत बच्चों के लिए बहुत मतलब है, बड़ी श्रद्धा से रखा जाता है, तो वो बच्चों के सारे कष्ट दूर होते हैं और बच्चे हमेशा जो है वो भी सीखते हैं माँ बाप से। तो इस तरह से मैंने जो है वो उपवास को अच्छे से कर पाई, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा की कृपा से जो है सब कुछ अच्छा ही है। बस मम्मा जो है मेरी जो है मेरी मदर इन लॉ, वो तो अभी उनका एज फैक्टर है, तो उनका अभी थोड़ा फिर दोबारा उनके पेट में जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से उनको बार-बार मतलब पेट ठीक नहीं रहता उनको। तो वो उनके जो है वो एज फैक्टर है, तो डॉक्टर भी बोले कि बस जब तक चलता है चलने दो, अभी और मेडिसिन नहीं दे सकते। इस एज में ज़्यादा मेडिसिन देना इज़ नॉट गुड है। तो कृपा बस उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना, उन्हें कष्ट मत देना ज़्यादा, है ना? इस एज में इतने कष्ट झेलना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं वो, और इसलिए उनको भी बस आपका ही नाम लेकर चल रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा की कृपा दृष्टि हर संगत पर, हर मतलब सब पर बनी रहे, बस यही हमारा गुरुपा से जन्म में प्रार्थना है। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है कि उन्होंने हमें
अपने सत्संग में बुलाया। कल जो है वो संडे को 12 तारीख को सत्संग था हांगकांग में भी। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ही मतलब गुरुपा के दिव्य दर्शन वहाँ पर हुए। गुरुपा के जो जोत थी वो एक जोत से 2 जोत बन गई और बहुत ही मतलब मतलब दिव्य दिव्य रूप था। ऐसा लगा था कि 2 जोतें जल रही हैं। एक इतनी बड़ी-बड़ी जोत होकर 2 जोतें जल रही हैं और बहुत अच्छा हुआ। अंकल के मम्मी-पापा बहुत जैसे ओल्ड थे तो वो आए और उन्होंने ही जो है वो गुरुपा को भोग लगाया और बहुत ही मतलब बहुत प्यारे-प्यारे शब्द थे। तो इस तरह से गुरुपा ने हमें भी ऑफ कोर्स ब्लेस किया। हम सब लोग मैं मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो उनके सत्संग में गए और बहुत ही हमें दिव्य दर्शन हुए और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। अभी गुरुपा ने जो है नेक्स्ट वीक में फिर सत्संग है सैटरडे को और उस दिन भी गुरुपा ने हमें बुलाया है। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि आप एवरी वीक अपने सत्संग में बुला रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा आपका इस तरह से ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना। मैं संगत जी बताना चाहूँगी जब मैं गुरुपा ने मेरा अपने साथ जोड़ा था उस वक़्त मैं जस्ट हांगकांग में मैं 2023 को दिसंबर के मंथ में उस समय मैं सोच रही थी कि मुझे हांगकांग में कहाँ पर सत्संग में जाने को मिलेगा। मैं सत्संग में सर्च करती रही लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। उसके एक ही आई थिंक मुझे 15 दिन 1 महीना हुआ था गुरुपा से जुड़े और अचानक मुझे जो है सत्संग का इन्विटेशन आया। मेरी बेटी की फ्रेंड आंटी के घर में सत्संग था और उन्होंने बताया कि वो गुरु जी को मानती हैं और उनको मेरी बेटी ने बोला कि मेरी मम्मा जो है वो किसी गुरु शुक्राना गुरु को मानने लगी हैं और वो दिन रात गुरु जी करती रहती हैं। तो तब उसने बताया कि मेरी मम्मा भी मानती हैं तो उसको मम्मा ने अपने घर में सत्संग कराया और हमको इन्विटेशन दिया। मेरे को बुलाया और बोला कि मैंने सुना है आप भी मानते हो तो आप ज़रूर आएँ। उस दिन मैं उनके सत्संग में गई। बस गुरुपा से मेरे मन में कह रही थी गुरुपा मुझे कहाँ सत्संग मिलेगा हांगकांग में, मैं कैसे जा पाऊँगी? बड़े मंदिर यहाँ से एवरी टाइम जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हम जाते हैं तो तभी हम जा पाते हैं, है ना? हर इधर इंडिया बार-बार जाकर तो जाना तो मतलब ऑफ़ कोर्स पॉसिबल नहीं था। तो गुरुपा ने एकदम मुझे वहाँ बुलाया और बहुत ब्लेस किया और तब से वो सत्संग लगातार कंटिन्यू हो रखे हैं। तो गुरुपा आपको बहुत-बहुत शुक्राना है। आप मन की बात को इतनी जल्दी सुन लेते हैं। जैसे कि बस मैंने मन में सोचा ही था और आपने मुझे एकदम वहाँ सत्संग में बुला लिया और सत्संग में बुलाने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा का मेरी बेटी दोनों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना है। मेरी बेटी को आपने बहुत अच्छे नंबरों से यूनिवर्सिटी कराई है। अब वो उसकी कंप्लीट हो गई है। वो जॉब देख रही है कि वो उस अपने ही फ़ील्ड का जॉब का 1 साल का एक्सपीरियंस ले ले फिर वो मास्टर कर पाए। इसके लिए भी गुरुपा उसको हिम्मत दे रहे हैं और शक्ति दें और उसको उसके जो वो इस फ़ील्ड में चाहती है वो जॉब उसको मिल पाए तो वो अपना आगे जो है वो कंटिन्यू कर पाएगी क्योंकि उसी फ़ील्ड में मिलना ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ नॉर्मली दूसरी जॉब पे मिल जाती है लेकिन दूसरी जॉब करने से फ़ायदा नहीं है। कि सेम फ़ील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है इस तरह से ब्लेस करने के लिए। मेरी बेटी को आपने बहुत पॉज़िटिव हिम्मत दी और वो पहले जो है थोड़ा हेजिटेट होती थी लेकिन बाद में उसको बहुत अभी कॉन्फिडेंस भरा है। वो अभी आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुपा। बस मैं भी अपने यहाँ सत्संग चलाना चाहती हूँ गुरुपा और मैं बस ये सोच रही हूँ किसी तरह से ये सारे फेस्टिवल वगैरह कंप्लीट हुए और मेरी बेटी और बेटा भी उस दिन अवेलेबल रहे इसलिए मैं सत्संग उसी समय कराने के लिए सोच रही थी क्योंकि बेटा काफ़ी बिज़ी रहता है तो उसको टाइम होना ज़रूरी है। उस वक़्त वहाँ पर घर पे होना चाहिए तो उसका ट्रिप लगते रहते हैं इधर-उधर। तो गुरुजी की कृपा जब होगी तो वो तभी होगा कि मेरा बहुत मन है कि मेरे घर में भी गुरुजी का जो है मैंने सत्संग हमने कई बार किया है लेकिन वो नॉर्मली अपने आप ही किया है। गुरुपा जो है संगत के साथ जो है वो सत्संग जो है खूब संगत आके करे वो सत्संग अभी तक नहीं किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से आप ही की कृपा होगी तो सब कुछ होगा। आपकी मेहर से ही सब कुछ हो रहा है। आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और जब मैं सत्संग अपना शेयर कर रही थी तो एक दिन तो मैं सत्संग से सुनाई रही थी वैसे वो कबूतर आकर मेरे पास बैठ गया और वो जब तक मैं सत्संग करती रही वो मेरे पास बैठा रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा लगा था आप ही है और मुझे देख रहा था। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो क्योंकि ऐसा लगा गुरुपा ही सुन रहे हैं बैठ के कि ये क्या बोल रही है
है सत्संग में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इस तरह से हमारे अंग-संग आते हैं और हम अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। आपने जो है वो सुमन आंटी का भी सत्संग करवाया, वहाँ पर 12 तारीख को उनके भी सत्संग हुआ होगा देहरादून में, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत शुक्राना है कि हम लोग वो सत्संग हम लोग भी सुन पाएँगे या देख पाएँगे जब सुमन जी शेयर करेंगी। तो उनको भी ब्लेस करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरु का। बस आपका शुक्राना करते-करते ही हम मतलब करें वो जितना भी करें उतना ही कम है। आप हमेशा हमारे मन की बात को सुन लेते हैं। अभी कल परसों में जब जो है सत्संग में जब जा रहे थे तो बहुत सारा मतलब फास्टिंग और काम होने से बैक में थोड़ा पेन था बहुत। तो मैं सोची थी कितना पेन है, बैक में पेन हो रहा है और हमें मैं क्योंकि नीचे बैठते हैं सत्संग में, तो हम जब सत्संग में गए तो काफ़ी रश था, जगह कम थी, मतलब इस तरह की जगह कम थी कि सपोर्ट से बैठ सकें। तभी एक आंटी ने इधर मुझे बोला कि आप इधर आके, वो वहाँ पहले ही बैठी हुई थी, आप इधर बैठ जाओ। वहाँ पर सपोर्ट था और उन्होंने अपनी गद्दी निकाल कर दे दी, जबकि मैंने उन्हें कहा भी नहीं कि मेरे को थोड़ा बैक में मतलब कि फास्टिंग भी थी, बहुत काम भी चल रहा है ना, तो इस वजह से बहुत टायर्ड सा था, कमर में पेन था, दर्द सा हो रहा था। तो उन्होंने वो मेरे को जो है गद्दी दी और वहाँ पे बैठाया, क्योंकि मैं तो मन में सोच रही थी कि इतनी रश में मुझे कहाँ पर जगह मिलेगी ऐसे बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से जगह मुझे दिलाई और मैं वहाँ बैठी और मतलब बैक सपोर्ट मिल गया, तो नीचे बैठने में मतलब प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस दिन थकान बहुत हो रही थी कमर में दर्द की वजह से। सत्संग जब खत्म हुआ उसके बाद कमर का दर्द ऐसे चला, कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। एकदम गुरुपा ने वो दर्द को दूर कर दिया, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को ही समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा इस तरह से अपनी संगत पे सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना, सबकी मुरादें पूरी करना। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को मैं समापन करना चाहूँगी संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सर्वत को भला करना, सब पर अपनी कृपा से बनाना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती करा, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की तरफ से और हमारी तरफ से सारी संगत जी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। परमात्मा करे इनकी जोड़ी सदा सलामत रहे और इनका प्यार एक दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता रहे। सुमन आंटी जी, आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके पति का प्यार भी आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ बख्शे और प्यार करे और इस प्यार में ही डूबे रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी ने ही ये हमें बख्शीश की थी, सदा स्वागत है इनकी। आशीर्वाद गुरु जी महाराज सबको दे रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि सबके जोड़ी बनी रहे, सदा स्वागत रहे और अपने पतियों की खुशियाँ और सलामती का हम अरदास करते हैं और उनके जीवन में हमसे कोई भी गलती ना हो जो कि वे गुस्से हों। इसलिए कहते हैं कि अपने पति का प्यार हमेशा सबको मिले। बहुत कर्माले हैं जिनके पतियों का प्यार जिनको मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जिनके पास कम है उन्हें गुरु जी महाराज ब्लेस करो और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उन्हें भी ब्लेस करो। और जिनमें कोई गलती है, पति में गलती है, पत्नी में गलती है, दोनों का समझौता करो और इनको ये ब्लेस करो कि करवा चौथ के अगले तक ये जोड़ियाँ बिल्कुल सलामत और खुशियों से भरपूर हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमेशा इतनी है कि छोटी छोटी ब्लेसिंगां ही हमें ज़िंदगी दे इतनी खुशियाँ दे दियाँ कि हम इतने पावरफुल हो गए कि अब कितने बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं तब भी कह देते हैं कि गुरु जी महाराज ने जो किया ठीक किया, जो होगा बहुत अच्छा होगा। सारा कुछ गुरु जी महाराज के ऊपर ही छोड़ दिया है। गुरु जी महाराज जी को पता है कि मैं किस विपदा से निकल रही हूँ और मैंने गुरु जी महाराज को ही कहा है जिसका साहिब ठाडा मार सके न कोई। गुरु जी महाराज जी, आप ही हमारे वैद हो, आप ही हमारे गुरु जी हो, आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे वकील हो, आप ही हमारे पुलिस वाले हो, आप ही हमारे जज हो, आप ही हमें बचाने वाले हो, आप ही हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने वाले हो, आप ही हमें पालने वाले हो, आपने ही हमें हमारी बाँ पकड़ने वाले हो। क्योंकि गुरु जी महाराज जिस हालत से बिगड़ निकल रहे हैं वो आप सब जानी जान हो। इसलिए गुरु जी महाराज मैंने मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, तू करवा चौथ की तैयार हो। आज बहुत साल बाद हम दोबारा तैयार हुए हैं आज करवा चौथ के दिन। तो ही गुरु जी महाराज को आज शुक्रवार के दिन कनेडा में आज है, इसीलिए मैं अभी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। क्योंकि गुरु जी महाराज ने हमें इस साल छोटे छोटे हर एक फंक्शन पे, जैसे करवा चौथ, अष्टमी, माता दुर्गा, यानी हर त्यौहार पे तैयार किया है। पिछले साल हम किसी त्यौहार पे तैयार भी नहीं हुए थे और गुरु जी महाराज ने इतने सोने सोने गिफ्ट देते हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि गुरु जी महाराज हम उन्हें देखकर और पढ़कर इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई कमी है ही नहीं थी, सब पीछे का भूल जाते हैं।
कि आज की गुरु जी महाराज जी आपकी हमारे पे कृपा बहुत है। इस तरह अपनी रहमतों से अपने परिवार को सींचना, अपने परिवार को पालना और अपने परिवार को संभालना। करवा चौथ से पहले तेरे पति को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। आज 12 बजे से पहले शुक्राना करके 777 लिख दे। गुरुजी महाराज मैंने कापी में लिखती हूँ जो मुझे मैसेज मिलते हैं, क्योंकि शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ और मोबाइल में देखती हूँ मेरी सोच के अनुसार क्या मिलता है मुझे। तो मुझे गुरुजी महाराज ने सबसे पहले मैसेज करवा चौथ का ही दिया, क्योंकि करवा चौथ की हुई मैंने बधाई देने के लिए ही शुक्राना सत्संग किया था और गुरुजी महाराज को मैंने जो अर्जी लाई बताया है उसके लिए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया कि करवा चौथ से पहले तेरे पति को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। आज 12 बजे से पहले शुक्राना करके 777 लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और पैसों के बाबत ही मैं सोच रही थी तो गुरु जी महाराज ने कहा, गुरु जी तुझ पर पैसों की बारिश करने वाले हैं, पुत्र छाता नहीं खाता संभाल ले। मैं बहुत खुश होगी कि छाता तो नहीं संभाल दिया, बारिश अमृत वर्षा होती है तो छाता भी संभालना पड़ता है, पर गुरुजी आपके कहते मैंने छाता छोड़ दिया और खाता संभालने शुरू हो गई। गुरुजी महाराज मैं कई दिन से आपको यही कहती थी कि बाबा जी, मेरे गुरुजी महाराज जी बैंक बैलेंस और तिजोरियाँ भर दो। तो गुरुजी महाराज कहते हैं खाता संभालना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, इतनी अच्छी ब्लैसिंग देने लगी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। पुत्र दिवाली से पहले तू करोड़पति बनने वाला है, तेरा घर पैसों से भरने वाला है, बस तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पुत्र तेरे घर रौनका लगनियाँ हैं, पुत्र तेरे घर रौनका लगनियाँ हैं, तेरे घर पुत्र तेरे गुरु जी ने नीला चोला ते काली शॉल ओढ़ के आएंगे, बस दिलो शुक्राना कर, जायश कर, जायश कर, जायश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये भी आपकी मुझे पैसों की टेंशन सी, तो देख लो गुरु जी महाराज ने इस बार मुझे पैसों का भी बता दिया और गुरु जी महाराज ने मेरी झोली भर देनी है। मुझे पता मेरा जो लॉस है, मेरे गुरु जी महाराज ने मिनटी खड़े मुझे पर तैयार हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि देख दी है ये मैंने शुक्राना कर दी है। कल वीरवार मेरा शुक्राने का टाइम भी नहीं लग गया तो मैं तो नहीं होया, तो मैं कहनी है कि कुछ सुनया मैं सत्संग ची कि शुक्रवार भी शुक्राना करो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो आज शुक्रवार है और करवा चौथ का दिन है, माता करवा चौथ वाली माता को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सबके सुहागों को बहुत लंबियाँ लंबियाँ उम्र बख्शो, सदा जोड़ियाँ सलामत बख्शो मेरी करवा चौथ माता जी। सबको खुशियों से भर दो, जो भी जिसको लोड़ है वो सब आपने देना है, खुशियाँ भरपूर दे दो, झोलियाँ भर दो सबकी, पूरी संगत की, पूरे संसार की। सर्वत दा भला मंगते हैं, सर्वत दा भला करते हैं और सर्वत दा भला सोचते हैं। सब नू सारे त्यौहार रौनकों से खुशियों से मनाएं अपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने बच्चों की फिक्र ना करया कर, मैं तेरे परिवार पर मेरी चादर हमेशा फैली रहेगी। ना जा ऐश कर, जा ऐश कर, अब कोई बुरा असर नहीं चलेगा। तू मेरी धी है, तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट टाल दिता है। मैं अपने प्यो होण दा सब फर्ज निभाए ने, हुण सब चंगा होवेगा। तू गुरु जी महाराज, मैं 3 दिन से शुक्राना करने से पहले 3 दिन मेरे पे बहुत भारी थे। मैं 8 या 9 बजे लेट जाना तो 2 बजे उठना, सारे बिस्तर तो रूम ओम ही जिस तरह हम उठते हैं बैठते हैं, खलारा ऐसे कोई सवार है नहीं। और जरा से बर्तन ही मांजती थी 2 ढाई 3 बजे उठ के, और वाशरूम भी साफ़ नहीं होते थे, इतनी बुरी हालत थी मेरी। और गुरु जी महाराज ने तभी मुझे ये मैसेज दिए। आज मैं कुछ ठीक हूँ, कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर भी मैं 2 ढाई घंटे सो के उठ के थोड़ा बहुत काम किया, पर 3 दिन मेरे बहुत भारी थे, मेरे से कुछ नहीं हुआ, मेरे शरीर में, मेरे पैरों का। बस मैं कभी गुरु जी महाराज को ये नहीं बताती, बस मैं गुरु जी महाराज को कहती हूँ जो आप करवा रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा ही करोगे। इसीलिए मैं गुरु जी महाराज को पर कहती हूँ पूरी संगत जी को कि अपना विश्वास बना के रखो। गुरु जी महाराज ने ये नहीं पता कद त्याग कर देना। गुरु जी महाराज को कहते हैं पैर ठीक है, तो अब कहते हैं पैर दुख रहे हैं, तो इसलिए कहो ही मत, कहो गुरु जी महाराज सब हमारे हेल्थफुल वेल्थफुल हैप्पीनेस ब्लैस करो, सानू साडी सेहत ठीक करो। गुरु जी महाराज कहते हैं ताइयों तो कमलिया मैं तेन ज़्यादा पैसा नहीं दिंदा, कमलिया अजे तेरी सेहत नहीं ठीक हैगी। अज भी मैनू यही मैं मैसेज सुनती सी पढ़ती सी, तो कहते कमलिया अजे तेरी सेहत ठीक नहीं, तेरा पैसा बीमारी ते लग जू, फिर तू ऐश कित्थे लवेंगी। मैं कहा ठीक है गुरु जी महाराज, फिर पैसा नहीं चाहिए, मैनू सब तो पहला सेहत सही चाहिए और पूरे परिवार को तंदुरुस्ती बख्श दो और कितने किराया कट दो, ब्लैक मैजिक कट दो, खुशियाँ कर दो, जितना छोटा सा परिवार है खुशियों से भर दो।
एक एक जी अलग अलग बैठा है। चलो गुरु जी महाराज, इसमें भी कोई भला है। गुरु जी महाराज जी, आपने मुझे बचाया, सच्ची बचाया, पर मैंने कोई दवाई डॉक्टर के नहीं गई। मेरी बच्ची कहती रही मम्मी तू ये दवाई ले ले। मैंने बीपी की दवाई तो ली, मैं बीपी की दवाई तो ली, लेकिन गुरु जी महाराज मैं उधर कोई दवाई नहीं ली। इसलिए गुरु जी महाराज ने ही मुझे ठीक किया है। जल प्रसाद में सवेरे से लेकर शाम तक मैं जल प्रसाद ही अधिकतर पीती रहती हूँ। इसलिए गुरु जी महाराज पर कहती हूँ सब विश्वास रखो। कोई दवाई नहीं, हालत बहुत खराब सी और खती पीती भी रही, ऐसे कि खाने पीनी नहीं, खा पी लिया और ज़्यादा ही खाया होगा जरा मेरा सा, खा लिया पी लिया सोगी, खा लिया पी लिया सोगी, खा लिया पी लिया सोगी, यो काम करे मैंने 3-4 दिन। और शरीर में खड़े होने की जान नहीं थी बिल्कुल भी। आज मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी महाराज ने कहा तो भाई तेरा सारा मैं टाल दिता। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट सी जो गुरु जी महाराज को मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज मैं विदेश से बैठी हूँ, मेरी इतने डॉक्टरी बहुत महंगी है, इतने मैंने तुझे आप दी जल प्रसाद बहुत शक्तिशाली है, आप जी की ब्लेसिंग बहुत शक्तिशाली है, आप जी का लंगर प्रसाद बहुत शक्तिशाली है, आप जी का जल प्रसाद बहुत शक्तिशाली है, और आप जी का चंदन टीका बहुत शक्तिशाली है। इन्हीं चीज़ों से यही मेरी दवाई है, यही मेरा सब कुछ है। इसीलिए गुरु जी महाराज ने मुझे ठीक किया, मेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिता। कहते तू टूटिया नहीं। मैं टूटी नहीं, मैं कहा मेरे गुरु जी महाराज हैं, सच्ची हैं, मैं बैठ के सच्ची कहती हूँ, तू टूटिया नहीं इसलिए बचा लिया। गुरु जी महाराज ने परीक्षा ली होगी, पर मैं क्या नहीं शंकी, मुझे दवाई लगती ही नहीं, मैं जल प्रसाद से ठीक हो जाऊंगी। तो मैं क्या कि ठीक है तू टूटिया नहीं इसलिए बचाया है। गुरु जी अब तुझे वो देने जा रहे हैं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। शुक्राना किए जा, शुक्राना किए जा, बस शुक्राना किए जा, बार बार शुक्राना किए जा। बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी महाराज ने टाल दिया। बड़ा कहता है अब मैं तेरे घर बरकत बरसेगी, बड़ा कहता है अब तेरे घर बरकत बरसेगी। बस तेरा भरोसा और शुक्राना दोनों कायम रहने चाहिए। बस तेरा भरोसा और शुक्राना दोनों कायम रहने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अब तो ये भरोसा मर के भी नहीं टूटने का। जब भी हमें आपने लेके जाना, अपने चरणों में लेके जाना, गोद में बिठा के लेके जाना। बस गुरु जी महाराज थोड़ी सी उम्र इसलिए मांग लेते हैं, आपको परिवार का पता है। गुरु जी महाराज जिस दिन भी आपने लेके जाना अपनी गोद में फूलों की तरह अपने निक्के से बच्चे की समझ के, शिष्य समझ के ले जाना। बिल्कुल भी दुख ना हो। मैं अपनी जवानी में एक बात सुना था कि किसी को ऐसे नहीं होता भाई वो मिट्टी में डूब गया, डर गई मैं। उस दिन मैंने ये वचन लिया था कि मुझे जवानी में चाहे दुख है चाहे सुख है जो भी है, पर मेरी मरण मिट्टी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। लोग देखे कितनी सोनी मौत है। तो गुरु जी महाराज अब आप मुझे मिल गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरु जी महाराज मुझे फूलों की तरह भवसागर से पार कर देंगे और अपने चरणों में हमेशा जोड़ के रखेंगे। सिमरन नाल जोड़िया अनमूल्य रतन बहुत दिखता है गुरु जी महाराज, जो मुझे कभी जिंदगी में कोई दे ही नहीं सकता। सिमरन तो मैं अगे भी कर दी सी, लेकिन हुण सिमरन दिमाग में और पछतावा लगता। इसलिए गुरु जी महाराज मैं एक ये भी गलती सबके सामने कहती हूँ, मैंने किसी चीज़ को लेकर बहुत पछतावा किया तो मैं आगे भी कर लेती थी, जैसे झूठ भी कह देना है नहीं मेरे पास नहीं है, तो मुझे वो पछतावा अमृत वेले उठ के भी लगा। तो गुरु जी महाराज मुझे ये महसूस हुआ कि देखो गुरु जी महाराज ने अब सही रास्ते हमें लगाया है, तो सही रास्ते चलो। गुरु जी महाराज आपकी कृपा जिस तरह चलाना है उस तरह चलाओ। बस हमने तो अपनी सारी टेंशन आपको दे दिया, सारियाँ परेशानियाँ चिंता आपको देती हैं, और घर भी आप चला रहे हो बहुत सोना, बेअंत 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 सोना घर चला रहे हो। आप जी का केड़े शब्दों नाल शुक्राना करें। आप जी की इतनी रहमतें, इतनी रहमतें, इतनी रहमतें हैं। मैं तो हर रहमतों का यही रोज़ अरदास करती हूँ, सवेरे उठ के शुक्राना ही करती हूँ कि मालिक तेरी हर रहमत का शुक्राना शुक्राना है। निक्की तो निक्की, निक्की तो निक्की, निक्की तो निक्की, बड़ी तो बड़ी, बड़ी तो बड़ी, बड़ी तो बड़ी, हर एक रहमतों का बेअंत 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 शुक्राना है, 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 शुक्राना है। मेरी सुमन आंटी जी, आप जी को भी बहुत बहुत करवा चौथ की बधाइयाँ हों। और जो भी आपकी अरदास गुरु जी महाराज जी के चरणों में लगी हुई है, हम भी अरदास करते हैं गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी की अरदास सबसे पहले पूरी करो। ये पूरी संगत जी के शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं। हेल्थ ब्लेस करो, वेल्थ ब्लेस करो, हैप्पीनेस करो। आज तो बहुत सुंदर लग रही होंगी सुमन आंटी जी, करवा चौथ पे तो फुल तैयारी करी होंगी। वैसे तो आप रोज़ ही बहुत सुंदर लगती हो, और मैं तुम्हारी क्लिप देख के, आपकी स्नैप देख के बहुत खुश होती हूँ कि सुमन आंटी जी बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही है, नज़रों से भी बच जियो। और गुरु जी महाराज आपको ब्लेस करन, हर तमन्ना आपकी पूरी हो। और हमारी तरफ से आपको बहुत 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 बधाइयाँ। दिवाली की भी पहले दे देते हैं, दिवाली की भी पूरी संगत को भी दिवाली की भी एडवांस में, और गुरु जी महाराज को भी एडवांस में ही दिवाली की मुबारक देते हैं, सुमन आंटी जी को भी। और आपको
हर खुशी गुरुजी महाराज दें और आपकी झोली खुशियों से भरती रहे, फूलों से खिलती रहे और सबको फूल बरसाती रहो। ऐसे ही सुंदर बन बनकर खुशियाँ देती रहो। सत्संग सर्वदा भले दे कराती रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा सत्संग फिर बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज जी। ये शुक्राना सत्संग पहले आप जी के चरणों में, श्री कमल चरणों में अर्पित कर दी हूँ और आप जी ने सुमन आंटी जी को भेज रहे हो। सुमन आंटी जी पूरी संगत को भेजेंगी और पूरी संगत सुन के खुशियाँ और आशीर्वाद से झोलियाँ भरेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। और अब मैं गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ महाराज, ਕੀਤੇ पाप बथेरे, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ। गुरु जी महाराज पूरे संसार को, पूरे संगत जी को, सुमन आंटी जी को, हमें सारे परिवारों को सर्वदा भला करते हैं, सर्वदा भला मांगते हैं और सर्वदा भला सोचते हैं। गुरु जी महाराज जी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब आप जी की आज्ञा है और दूसरा सत्संग करने की हमें ब्लेस करना। और गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। 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 जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनाली पुणे से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं यूट्यूब के थ्रू गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। मेरे मोबाइल में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते थे टेलीपैथी के। मैं जब भी स्क्रॉल करती थी तो वो टेलीपैथी के मैसेजेस आते थे। मैं स्क्रॉल करती थी तो भी वो वापस आ जाते थे। तो मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी समझ में आ गया वो गुरुजी अपने से बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं। तो मैं धीरे धीरे सत्संग भी सुनने लगी। उसके थ्रू भी मुझे बहुत से सॉल्यूशंस मिल गए मेरे प्रॉब्लम्स के। और एक घटना मेरे साथ ऐसी हुई कि राखी पूर्णिमा के दिन मैं गुरुजी से बात करती थी कि मैं राखी किसको बांधूं, क्योंकि मेरा भाई है पर वो मुझसे बात नहीं करता। जब से मैं विडो हो गई हूँ तब से वो मुझसे राखी नहीं बंधवाता। तो मैं बाबूजी से बोल रही थी, गुरुपा से बोल रही थी कि मैं किसको राखी बांधूं। तो मुझे इमीडिएटली मैसेज आ गया कि तुम मेरे स्वरूप के आगे राखी रख देना और उसके ऊपर ओम लिखा होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। मैंने जब भी राखी खरीदी तो मुझे ओम की ही राखी मिली और मैंने वो राखी गुरुपा के स्वरूप के आगे रख दी। और मुझे इमीडिएटली मैसेज भी आया था कि मुझे जो भी हो खाना घर पे, चाहे वो कल का हो, मेरे सामने रख देना। मैंने उस दिन पूरा खाना बनाया जो भी घर पे बनाता है, उसके साथ में थोड़ी खीर बनाई थी और वो गुरुजी को भूख लगाया। उसके बाद मुझे इमीडिएटली मैसेज आया कि मुझे भूख लग गया, तेरे हाथ में बहुत टेस्ट है, अच्छा खाना बनाया था। मुझे कोई ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। ये गुरुजी अपने से सही में बात करते हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे अपने चरणों में जगह देने के लिए, मेरे बच्चों को अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। कुछ शुक्राना सत्संग सुनाने में यदि कुछ भूल हो जाए संगत भैया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अभी अपने गुरु जी का तो स्वरूप नहीं है मेरे पास, तो मैं टीवी से उनका स्वरूप निकाली हूँ और मैं वहाँ अपने उनके स्वरूप के बगल में बैठी हूँ और जोत जलाई हूँ और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज शुक्रवार है और आज करवा चौथ भी है। हमारे यहाँ नहीं होता है करवा चौथ, पर मैं की नहीं हूँ, पर आज करवा चौथ है। सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं संगत भैया सभी को। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मैं 2025 जनवरी से जुड़ी हूँ। अपने कजन भाभी, मेरी बड़ी भाभी है, उन्होंने, उनके पूरा फैमिली जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था गुरु जी के बारे में। मैं तो सी गुरु को ऐसे ही, जब से मैंने अपने पापा को खोया ही हूँ छोटे में, तब से मैंने अपने भोले बाबा को ही गुरु मानी हूँ और मैं गुरु दीक्षित भी हुई हूँ एक गुरु जी से। मेरा मंत्र भी गुरु जी का ही मिलता जुलता है और मेरे गुरु जी भोले बाबा तो थे ही गुरु जी, हाँ, पर मुझे डुगरी वाले गुरु जी के बारे में मुझे मेरी भाभी ने बताया। जो जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, मेरे जितने भी बुरे कर्म थे सब उन्होंने कोई रूप में कटवाया। जैसे मेरे हस्बैंड
से मेरी बनती नहीं थी, हमेशा ड्रैगन पे था, हमारी लड़ाई झगड़ा, हमेशा वो मुझे इग्नोर करना, मुझे कटु वचन बोला, मतलब इतना टॉर्चर, मुझे इग्नोर करना, मतलब मेरे पति हमेशा हमसे दूर दूर, फिर उनका अफेयर चला 5-6 साल तक, उन्होंने मुझे धोखा में रखा, मतलब ये सब मेरा कर्मा था, मेरे हस्बैंड का गलती इसमें नहीं था, ये मेरे बुरे कर्म का कुछ होगा जो मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे दुख मिला। और शुक्राना गुरु पाई, बहुत छोटा दुख था, शुक्राना गुरुजी, नहीं तो मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख आता, पर मेरे हस्बैंड के थ्रू, ऐसे हस्बैंड मेरे बुरे नहीं है, उन्होंने मुझे बोले वो नहीं डांट रहे, मेरे गुरु जी ही मेरे कर्मा कटार, तो उनके थ्रू डांट दिलवाते थे। शुक्राना गुरु पा, अभी सब कुछ अच्छे संगत जी, उनका क्या बखान करूँ, हमेशा हमेशा रोज़ मुझे, कभी वाइट रंग का बटरफ्लाई ब्राउन कलर के मेरे आंवला गाछ के पास आके बैठते हैं, मेरे बालकनी में आंवला गाछ में बैठते हैं, कभी मेरे बगल में आजू बाजू घूमते हैं, मतलब रेसिंग करके जाते हैं। हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत टकरार होती थी, अभी गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा, आगे भी अच्छा होगा, मतलब वो मुझसे प्रेम से बातें करते हैं, और फैमिली में भी लोग मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं तो सभी लोग मुझसे, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, संगत जी एकदम, मतलब मुझसे कोई इतना बातें नहीं, सब मुझे नफरत की तरह देखते थे, हस्बैंड अंकल भी, बेटे भी, बेटा तो अभी भी गुरु संगत जी, बेटा तो गुरु जी को मानता ही नहीं है, वो बोलता है कि गुरु जी को देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, बोले ऐसे नहीं बोला चाहिए गुरु जी पर, कब उसे शुक्राना करने के लिए हम गुरु जी को ही बोलते हैं, कृपा मेरे बेटा को भी अपनी संगत में जोड़ लीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को भी, लोग कोई नहीं मानते हैं संगत जी, पर मैं, मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन मेरे पूरे परिवार मानेंगे संगत जी, उनका बखान क्या करूँ, जब भी मैं कोई चीज़ की पूजा करती हूँ, मुझे विघ्न आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, क्रोध आता है, तो मैं गुरु जी को बोलती कृपा, किसी चीज़ की मैं साधना कर रही हूँ तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, एक साधक को मुझे क्रोध को रोक लीजिएगा, मेरे मन को शांति दीजिएगा, तो अभी गुरु जी की कृपा से मेरा मन थोड़ा शांत है, और गुरु जी की कृपा से मेरा अहंकार भी शांत है, बहुत क्रोध, मालूम है शंकर जी, मेरा क्रोध सिर्फ एक ही इंसान के करीब आता है, ना ही देवरानी, ना सास, ना बच्चे, सिर्फ अपने हस्बैंड अंकल को पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी, मैं उन्हें जब भी देखती हूँ ना, लेट 9 बजे 10 बजे सो के उठते हैं, तो मुझे बहुत क्रोध आता है, फिर मुझे बहुत चिल्लाने का मन करता है, इतना लेट उठना डिसिप्लिन रूल नहीं है, ये नहीं, तो हमारे मेरे बात को गौर भी नहीं करते, और अभी भी लेट ही उठते हैं, पर क्या करूँ, अब गुरु जी ही उन्हें बुद्धि देंगे कि सुबह उठे, बस मेरा लड़ाई सिर्फ इसी के लिए होता है, उन्हें जो मेरे साथ किया, चलिए वो मेरे बुरे कर्म का ताव काटे, पर वो मुझे ना ध्यान दे रहे, अपने शरीर को ध्यान नहीं देते हैं, तो मेरा उनका लड़ाई यही होता है कि उठो गुरु जी का सिमरन करो, क्या ज़िंदगी है, कुछ भी ज़िंदगी नहीं है, और वो मेरे बात को गौर ही नहीं करते, कान से सुनते हैं, फिर भी वही रवैया, 8 बजे 9 बजे, हो सकता है उसको गुरु जी नहीं चाह रहे हैं अभी तक, अब जिस दिन गुरु जी की कृपा होगी बस, संगत जी गुरु जी की कृपा से मुझे उन्होंने सेहत ब्लेसिंग किया, मैं हमेशा, मुझे पेट क्लियर नहीं होता था, मेरा हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता पेट से जुड़ी समस्या, सब गुरु जी की कृपा से अभी मैं बिल्कुल शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ, और नींद भी अच्छी, पहले नींद की दवा खाना पड़ता था संगत जी डेली, पर 6-7 महीने जब से मैं गुरु जी से मैं जुड़ी, अभी कुछ दिन से 2-3 महीने से मैं अभी नींद की दवा नहीं खा रही हूँ, गुरु जी की कृपा से मुझे अच्छी नींद भी आ जाती है, और गुरु जी ने कहीं ना कहीं किसी संगत अतः शुक्राना सत्संग में बताया था कि अजवाइन नमक खाने से नींद भी अच्छी आती है, और सत्संग में भी मैंने सुना था, प्रवचन में भी सुना था, एक गुरु संत ने बताया, तो जिसे भी नींद की प्रॉब्लम है संगत जी, जिसे भी, तो वो सोते समय नमक, थोड़ी सी सेंधा नमक और अजवाइन को फाक के सोइए, देखिए अच्छी नींद आएगी, 1 घंटा आधा घंटे के अंदर ही नींद अच्छी आ जाएंगे, या तो फिर दूध में हल्दी देके आप खा सकते हो, उससे भी नींद अच्छी आती है संगत जी, उनकी कृपा से मुझे नींद भी अच्छी आने लगी, अब मेरे पेट भी क्लियर, मेरा हमेशा पेट क्लियर नहीं होता था, हमेशा प्रॉब्लम आता था, मतलब गुरु जी पे, गुरु पिता के कृपा से उन्होंने अपनी बेटी का हर पल, आज से नहीं, जनवरी से जब से उनसे जुड़े हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ, हमेशा हेल्थ ब्लेसिंग मुझे की है, और जब भी मैं रोई हूँ तो मेरे आंसू भी वही पोछे आके है, मैं जब भी अकेला महसूस की तो उन्हीं से बातें करती हूँ, मतलब हर समय, अभी भी मेरे साथ है, मैं उनके स्वरूप के सामने ही, मैं ऐसा लगता है कि मुझे देख रहे हैं, और उन्हीं की शक्ति से मेरे सब काम, उन्हीं की शक्ति से मैं अपने बगलमुखी के साधना भी उन्हीं की कृपा से करूँ, मतलब जिसकी भी साधना करूँ उन्हीं की कृपा से करूँ, उनकी कृपा नहीं होती तो मेरे घर में रात कृष्ण जी नहीं आते, लड्डू गोपाल, अगले साल मैं लड्डू गोपाल को लाई, अभी गुरु जी की कृपा से आई, मैं शिव जी के मंदिर हमेशा जाती थी, वहाँ बैठती थी, जोत जलाती थी, संध्या संध्या सुबह डेली जाती थी, पर अभी इस बार से कहीं नहीं गई, इस बार मैं गुरु कान्हा जी को ही मैं रखती हूँ, उनका ही सेवा करती हूँ, गुरु जी ने दिया कान्हा का सेवा करने, उनकी कृपा से मैं कर रही हूँ, और आज भी कर रही हूँ, और स्वस्थ हुआ, ताकतवर हूँ, और सब काम कर लेती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ गुरु जी की कृपा से, मुझे इतना ताकत मेरी ताकत नहीं है, मेरे गुरु की ताकत है, मेरी माँ बगलामुखी की ताकत, जो उनकी कृपा से मैं चलती हूँ, बोलती हूँ, बातें करती हूँ, संगत शुक्राना सत्संग करती हूँ, सब काम कर पाती हूँ, सब गुरु जी की कृपा से, और अभी गुरु जी की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ है, और मेरे हस्बैंड अंकल का भी बिहेव थोड़ा अच्छा है, और बेटे का भी, मेरे परिवार में सब अच्छा हो रहा है, और आगे भी अच्छा होगा संगत जी, बस उनका शुक्राना ही शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में तो मुझे एक दिन या कुछ दिन गायब होता है, बीच बीच में हमेशा मुझे दर्शन देते रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ना, मैं क्या बताऊँ, बस शुक्राना ही है उनका, वो मेरे, हमें मेरी बेला भी संभालती हूँ मैं,
और उनसे बातें करती हूँ। और अभी कार्तिक स्नान चल रहा है मेरा गुरुजी की कृपा से, बस सब उन्हीं की कृपा से और आगे भी उन्हीं की कृपा से होगा। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम ले रही हूँ, कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ग्रुपा जो भी मेरे शुक्राना सत्संग संगत भाई शेयर करें उनका भी भला करना, ग्रुपा जो शुक्राना सत्संग सुनो उनका भी दुख काटना, उसके भी ब्लेसिंग शेयर करना, शेयर ब्लेसिंग करना ग्रुपा। अब मैं गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, अनंता अनंता शुक्राना गुरु जी। जय माँ बगलामुखी माँ, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। मैंने अपना मम्मी के बारे में लास्ट टाइम पोस्ट किया था। शी वॉज़ वेरी सिक। जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि शी विल सर्वाइव वेरी लॉन्ग। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ अगर मम्मी रहेगी, उनका लाइफ है तो उनको जल्दी ठीक कीजिएगा, लेट हर नॉट बी इन पेन। और अगर उनका समय ख़त्म हुआ है तो आप उनको अपने पास अपने चरणों में लीजिएगा, उनको ज़्यादा मतलब तकलीफ़ ना हो, पेन ना हो, तो लेट हर नॉट सफ़र अ लॉट, लेट हर गो पीसफुली। वो भी इंसान है, गलती किया होगा, पर माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मम्मी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे भी माफ़ कीजिएगा प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उनको हमने एडमिट किया था हॉस्पिटल एंड हाँ, उनको मतलब बस एक दिन थी हॉस्पिटल में, 2 दिन सफ़र किया मम्मी ने, 1 दिन हॉस्पिटल में, और 4th डे आज के दिन मम्मी चली गई। कल के दिन सॉरी, कल मम्मी चली गई 8 बजे सुबह। और हमने आज संडे है, कल 11 तारीख मम्मी चली गई, आज 12th है संडे। तो आज के दिन हमने मम्मी का जो भी है अंतिम जो राइट्स है वो आज किए हमने। एंड इट वेंट वेरी पीसफुली। और मैं बहुत मतलब आई वॉज़ वेरी अपसेट। कल भी जब हॉस्पिटल से हम आए, जब हमें पता चला कि मम्मी नहीं है, तो मैंने बहुत बहुत मतलब गुरुजी से बहुत अरदास की। और मैंने कभी वो मेरी सिस्टर के कंपाउंड में कभी बटरफ्लाइज नहीं देखे, लेकिन जब मैं वहाँ बॉडी के साथ हम गए तो विश्वास नहीं करोगे आप संगत जी, बड़ा सा एक ब्लैक बटरफ्लाई विथ वाइट डॉट्स मेरे पास में सब मतलब बॉडी लेके ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर घर पे, और मैं वहीं पे खड़ी हो गई क्योंकि मैंने बटरफ्लाई देखा और वो मेरे 2-3 राउंड आ गए मेरे, और फिर पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया। इट वॉज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। गुरुजी हमेशा कंटिन्यूसली मेरे साथ थे, और घर पहुँचते तक भी गुरुजी साथ थे हर टाइम। एंजल नंबर्स या ओम के एम्बलम, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी मतलब हमें ब्लेस कर रहे थे। और आज संडे मम्मी का अंतिम संस्कार हो गया, अच्छी तरह से हो गया, मतलब नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग वेंट नाइस एंड वेरी पीसफुली। एवरीथिंग इज ओवर नाउ, मम्मी इज इन पीस। अब मेरी एक ही अरदास है गुरुजी, मेरे पापा, भाई और मम्मी को तीनों आपके चरणों में रखिएगा, उनको सेफ रखिएगा प्लीज़ गुरुजी, ये मेरी अरदास है। प्लीज़ गुरुजी उनको सेफ रखिएगा आपके पास, आपके चरणों में। शुक्राना 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 गुरुजी, उनको ज़्यादा दिन मतलब सफ़र करने नहीं दिया। मैंने अरदास की और आपने इतना ब्यूटीफुली मिरेकल किया, मम्मी को ज़्यादा दिन सफ़र करने नहीं दिया, सिर्फ 2-3 दिन, मे बी 4 days मैक्स। बट थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड शी वेंट पीसफुली, शी डिडंट सफ़र अ लॉट। और अब
इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, अब गुरु जी के हाथ में है। कोई बात नहीं, everyone has to go, so we have to understand that. शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मैंने गुरु जी के जो बहुत सारे चमत्कार अपनी ज़िंदगी में महसूस किए हैं। जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता आ गई है, पॉज़िटिविटी आ गई है। पहले जो छोटी-छोटी बातें मुझे हमेशा परेशान करती थी, अब मैं उन पर मतलब सोचती भी नहीं हूँ उनको और खुश रहती हूँ। मेरे जीवन में जो चेंजेज़ आए हैं, वो मेरे पति के स्वभाव में। पहले जो छोटी-छोटी बात पर नाराज़ होते थे, लड़ाई-झगड़ा करने लग जाते थे, लेकिन अभी जब से गुरुजी की मेहर हुई है, उनके स्वभाव में बहुत अंतर है। वो अब बात सुनते हैं, समझते हैं। अभी वो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं ये अरदास करती हूँ और अपनी संगत से अरदास करने के लिए कहती हूँ कि वो लोग अरदास करें कि मेरे पति जो हैं, वो भी गुरुजी के साथ जुड़ जाएँ और मेरा बेटा जो कि अभी सेकंड ईयर बीटेक कर रहा है, मैं बस थोड़ा-सा उसको लेकर परेशान हो जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि वो अपनी पढ़ाई पे कम फ़ोकस करके लाइक कुछ गेम्स, वीडियो गेम्स इनमें लग जाता है। गुरुजी ने बहुत बार मुझे जो है सत्संग भेजे हैं कि अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसका जो भविष्य है अच्छा बनाऊँगा, उज्ज्वल करूँगा। शुक्राना गुरुजी आप ही हो, हम सबके आप ही पिता हो, उसके आप नाना हो। तो मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब सँभाल लेंगे। मैं संगत जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो अरदास करें कि जो सबके बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो अपना जो है फ़ोकस जो है वो पढ़ाई पर लगाएँ। बुरी चीज़ों से बचे रहें, ऐबों से बचे रहें, बुरी संगत से बचे रहें। और मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और वो आगे भी अच्छा ही करेंगे। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।